प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 નું 23 સપ્ટેમ્બર તાઈ રેવેલા અમેરિકાના દોરા પર યુએનજીએમાં શિખર સંમેલનને કરેલા સંબોધિત નેતાવાર ઉદ્યોગ જગતરા પ્રમુખા શું કરેલા વાર્તા। मोदी सरकार तीसरा कार्यकाल 100 दिन पूरा होगा पर सहकारिता मंत्रालय रो राष्ट्रीय सम्मेलन हुए आयोजित। सहकारिता मंत्री अमित शाह कहा श्वेत क्रांति 2.0 महिला सशक्तिकरण रो करेली काम। दौसारा बांदीकुई में बोरवेल में गिरी बच्ची ने काढ़्यो गयो सकुशल बारे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ री टीम में करीब 18 घंटा री मशक्कत रे पाछे पाई सफलता। प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना रो बढ़ायो जावेलो दायरो। योजना रे तहत अब निजी अस्पताल रो नेटवर्क भी गांव ताई हो सकेलो उपलब्ध। और प्रदेश में आज सु एक बार फेरू बारिश रो दौर हुयो शुरू। मौसम विभाग आज जयपुर, भरतपुर, अजमेर समेत कई जिला में बारिश होबारी जताई संभावना। नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। मैं थारे सागे अरनिशा डाबले और खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 નું 23 सितंबर ताई अमेरिका रा दौरा माथे रेवेला। इन दौरान वे यूएनजीए माए शिखर सम्मेलन ने संबोधित करेला। प्रधानमंत्री कई विदेशी नेतावा व्यापार और उद्योग जगत रा प्रमुखा रे साथे वार्ता भी करेला। प्रधानमंत्री रा अमेरिका दौरा री जानकारी देबा खातर आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय काणीसू प्रेस वार्ता राखीगी। भारत 2025 में अगला क्वेड शिखर सम्मेलन री मेजबानी करेला। There will be interaction with a variety of foreign partners at the level of the Prime Minister. There will be interaction with the large Indian diaspora in the US, and there will be engagement with a host of business and industry leaders, amongst others. Prime Minister, let me give you a sort of a snapshot of the visit and the various elements that are currently fixed, and then I can go a little bit into the detail of each of these components. The Prime Minister's first stop will be Wilmington in Delaware, which, as you know, is the hometown of President Biden. That is also the venue of this 6th Quad Summit that will be held there. It also happens to be the 4th in-person summit between the Quad leaders, and that will be during the day on the 21st of September. From Wilmington, the Prime Minister will travel to New York to attend the Summit of the Future at the United Nations. This, as you know, is a special event that's been convened this year following a decision that was taken in 2021, I think. And the Prime Minister will address this gathering of world leaders. He will have a number of other engagements throughout these 3 days. So just to recap, on the 21st will be the Quad Summit, the bilateral meetings on the sidelines of the Quad Summit. A very special event this time on the sidelines of the Quad Summit will be a cancer moonshot event. This is a major priority. I can give you some more details on this later. On the 22nd, the Prime Minister will have an interaction with the Indian diaspora. This is being organized this time by the community in Long Island in New York. There will be a technology roundtable. It's a roundtable with a number of tech CEOs where opportunity to discuss the tech investment landscape and the opportunities that are available here will be on the table. And there will be separate and several other meetings with CEOs and other stakeholders. मोदी सरकार रा तीसरा कार्यकाल रा 100 दिन पूरा होबा माथे आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय रो राष्ट्रीय सम्मेलन राख्यो गयो।
सम्मेलन ने संबोधित करता थका सहकारिता मंत्री अमित शाह कहा कि सहकारिता व्यक्ति री शक्तियों ने समाहित करे है। वना कहा कि श्वेत क्रांति 2.0 महिला सशक्तिकरण रो काम करेली। इनरे साथ ही कुपोषण रे खिलाफ जंग ने भी मजबूती देवेला। इन दौरान केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन कहा कि देश में 3 करोड़ मछुआरा सीधा मत्स्य उत्पादन से जुड़िया हुआ है। मोदी जी की तीसरी टर्म में, एनडीए सरकार की तीसरी टर्म में सहकारिता के मंत्रालय की 100 दिन का आज महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज एक प्रकार से सहकारिता मंत्रालय ने जो 10 महत्वपूर्ण इनिशिएटिव इस 100 दिन में लिए हैं, उसमें से 3 इनिशिएटिव को आज एक ही मंच से लॉन्च किया जाता है। लगभग 3 साल पहले सालों से प्रतीक्षित एक मांग थी कि देश के 15 से अधिक क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की गतिविधियों से जुड़े सहकारिता आंदोलन को एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, सम विकास की दृष्टि के साथ देश भर में हर गांव तक पहुंचाने के लिए, विकसित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार में सहकारिता मंत्रालय का गठन होना चाहिए। लगभग 70 साल से मांग सत्ता के गलियारों में इधर उधर घूमती रही। अंततोगत्वा नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्वतंत्र स्थापना का निर्णय किया। ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्यशाली है और मेरे लिए ज्यादा सौभाग्य का विषय है, क्योंकि देश का प्रथम सहकारिता मंत्री बनने का सम्मान मुझे मोदी जी ने दिया है। मित्रों, सहकारिता वह शक्ति है जो व्यक्ति की शक्तियों को सामूहिक रूप से लाकर समाज की शक्ति के रूप में परिवर्तित करती है। ईश्वर ने हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की शक्तियां दी, मगर कोई एक व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता है। सहकारिता का मंत्र ही ये है कि सब साथ में आए, सबकी अच्छाइयां एकत्रित हो और सबकी अच्छाइयां एकत्रित होते ही सबकी कमियां कहीं दिखाई न पड़े और इस सब अच्छाइयों का जो योग है वो राष्ट्र के विकास में आगे बढ़े। दौसा जिलारा बांदीकुई माय बोरवेल माय गिरी बच्ची ने सकुशल बाहर काढ़ लियो गयो है। फिलहाल उन्हें स्वास्थ्य परीक्षण खातर अस्पताल माय भर्ती करायो गयो है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ री टीम करीब 18 घंटा री मशक्कत रे पछे बच्ची ने बोरवेल सु निकालबा माय सफलता हासिल करी। रेस्क्यू टीम बोरवेल सु करीब 60 फीट दूर गहरो गड्ढो खोद्यो, जिनमाय सु लोहारा पाइप डालर बोरवेल ताई बच्ची ने निकालबा खातर सुरंग बनाएगी। सकुशल बच्चे को बाहर निकाल दिया गया और अभी हमारे जो हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल बांदीकुई है उसमें बच्चे की जो है देखरेख हो रही है और शाम तक उनको मेडिकल केयर में रखा जाएगा और उसके बाद उनको परिवार को सुपुर्द कर दिया जाएगा। ये ऑपरेशन तकरीबन आप माने कि कल शाम 5 बजे से चालू था, जो कि अब से आधे घंटे या पौन घंटे पहले जाकर के पूर्ण हुआ है और इसमें हमारी एसडीआरएफ टीम, एनडीआरएफ टीम, सिविल डिफेंस की टीम, पुलिस, पीएचडी, पीडब्ल्यूडी जो हमारे लोकल मिट्टी खोदने का काम करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर्स, वो वर्कर्स, उन सभी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। ईश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ और प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूँ कि आज बोरवेल में गिर गई थी उसको सकुशल बाहर निकाल लिया। पूरे प्रशासन ने मुस्तैदी से काम किया, एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की, पुलिस, प्रशासन, जितने भी विभाग थे
जैन की एक तो लालसोट से जो प्राइवेट टीम आई थी उसने भी अपनी पूरी मेहनत की। पुलिस है, प्रशासन है, सबने एकजुट होकर कल से अथक प्रयास किया और हमें पूरी आशा थी कि जिस प्रकार की मेहनत लगातार टीम हमारी कर रही थी और योजनाबद्ध तरीके से बड़ी सतर्कता से लगातार उन्होंने अलग अलग मेथड को अपनाते हुए बच्चे की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सतर्क होते हुए पूरी जो उनका अभियान था बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालना, उसमें हम सफल रहे। 600 फीट गहरा बोरवेल था, लेकिन उसमें कुछ पानी की वजह से बीच में रुकावट हो गई और 28 फीट पे जो है लड़की, उस बच्ची को बचाने के लिए उसमें 10-12 फीट की केसिंग थी और नीचे कच्चा बोरवेल था। इस कारण से हम उसमें बड़ी जो है रिंग नहीं डाल पा रहे थे, इसकी वजह से वो लॉक नहीं हो पा रही थी। और यदि ऊपर से हम केसिंग को हटाते तो एक्चुअल में बिल्डिंग को रखने का बोरवेल कोलैप्स होने के चांस थे। इसलिए हमने जो है उसके बगल में पैरेलल डिगिंग की। 28 फीट पर उसके पैर थे, हमने 20 फीट दूर से उसका जो है पैरेलल डिगिंग की और 30 फीट 31 फीट किया। उसके बाद हमने 20 फीट अप्रोच किया और बिल्कुल एक्यूरेट जगह पर हम उसके पैर के जो है बिल्कुल नीचे जाके हमने अप्रोच किया। हालांकि इस प्रोसीजर में हमको बहुत सारा समय लगा, लेकिन इसमें सेफ्टी से हमने कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और आखिरकार हमने पहली बार में सफलता प्राप्त। પ્રદેશમાં સંચાલિત મુખ્યમંત્રી આયુષ્માન આરોગ્ય યોજનારો દાયરો ઓર બઢાયો જાવેલો इन योजना रे तहत सरकारी अस्पतालां रे साथे निजी अस्पतालां रो नेटवर्क अब गांव ताईं भी उपलब्ध हो सकेलो। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर स्वास्थ्य भवन माए आयोजित बैठक माए इन संबंध माए अधिकारियों ने निर्देश दिया। वणा कहा कि इन खातर आवश्यकता अनुसार नियमा माए बदलाव और सरलीकरण कर्यो जावे। साथ ही योजना सु संबंधित समस्याओं ने दूर करवा खातर ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम ने और मजबूत कर्यो जावे। केंद्रीय कैबिनेट एक देश एक चुनाव रा प्रस्ताव ने मंजूरी दी है। इन मंजूरी माथे लोगारो कहनो है कि इन फैसला सु धन और टेम री बचत वेली। जयपुरा लोगारो कहनो है कि बार बार आचार संहिता लागबारी बजे सु जो विकास काम रुक जावे है वो नीवेला और विकास री रफ्तार बनी रवेली। देखिए, मैं समझता हूँ ये सरकार का सबसे बड़ा कदम है और ये देश के लिए सबसे बड़ा कदम होगा, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन से जो है वो सबसे ज़्यादा लाभ अगर देश की जनता को मिलेगा। इसमें कई चीज़ें, तो देश की जनता की जो गाड़ी कमाई है वो बार बार इलेक्शन कराने के अंदर जो हमारा खर्च है वो घटके और बहुत कम हो जाएगा। दूसरा, बार बार आचार संहिता लगती है तो उससे जो है काम जो है विकास कार्य रुकते हैं और विकास कार्य रुकने की वजह से आचार संहिता में कई बार सरकारें जो है वो थोड़ी सी मजबूर हो जाती है काम नहीं करने के कारण। तो एक तो आचार संहिता से हमारे को मुक्ति मिलेगी और एक देश की जनता के जो टैक्स पेयर है उनके पैसे का जो लाभ है वो अन्य योजनाओं के अंदर लग पाएगा। अगर एक राष्ट्र एक चुनाव होगा, एक चुनाव में भी विशेषकर अगर लोकसभा और विधानसभा और चुनाव भी अगर एक साथ होते हैं तो भी ये बहुत बड़ी बात होगी। मैं पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय कोविंद जी ने जो रिपोर्ट दी, उनके नेतृत्व में कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसको केंद्रीय कैबिनेट ने अप्रूव किया है और अभी शीतकालीन सत्र में ये विधेयक की ओर अग्रसर है, प्रक्रिया में है। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि चुनौतियाँ हर कदम पे आती है, किसी भी दिशा में कदम बढ़ाएं, यही नहीं कोई से भी अपन योजना लागू करते हैं, कोई नए प्रयास करते हैं, चुनौतियाँ सामने आती है। चुनौतियों से हमें पार पाना होगा, हमें देश को समझना होगा, देश को समझाना होगा, आमजन को भी समझाना होगा कि ये उनके हित में है। एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब इसे शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों में पेश किया जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा में, जिसके बाद ये कानून की शक्ल ले लेगा। कैमरा पर्सन केदार प्रसाद शर्मा के साथ मोहम्मद अतीक, डीडी न्यूज, जयपुर। केंद्रीय कैबिनेट काणीसू एक देश एक चुनाव ने मिली मंजूरी पर टोंकरा युवा अपनी प्रतिक्रिया दी है। युवाओं कहनो है कि इन फैसला सु प्रतियोगी परीक्षाओं माए आवड़ी बाधावा सु निजात मिल सकेलो। इनरे साथ ही चुनाव माए होवाला खर्चा ने भी कम करियो जा सकेलो। वन नेशन वन इलेक्शन, क्या सोचते हैं आज के युवा इस फैसले पर और क्या है उनके मन में? वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो है रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनकी कमेटी ने ये रखा है और अब संसद के शीतकालीन सत्र में इस पर फैसला लिया जाना है।
जी ये बिल्कुल अच्छा फैसला है। मेरी नज़र में देखा जाए तो भारत की इकोनॉमी पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आचार संहिता लग जाती है उससे बहुत से स्टूडेंटों को, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा, जिससे जो वैकेंसीज रुक जाती है वह नहीं रुकेगी और जो पुलिस वगैरह जो काम लगती है इलेक्शंस के टाइम वो उनको ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा और जितना ज़्यादा पैसा बर्बाद होता है इलेक्शंस के अंदर, बार बार इलेक्शंस के अंदर, वो नहीं होगा। और जो जितने कम मतदान अभी इस टाइम हो पाते हैं वो वन नेशन वन इलेक्शन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन दिलचस्पी लेना पसंद करेंगे लोग। युवाओं में किस तरह का उत्साह है इस फैसले को लेकर कि ये जब होने जा रहा है, अब कब होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आप लोग कितने तैयार हैं? जी हम इसके लिए बहुत तैयार हैं, क्योंकि ये जो वन नेशन वन चुनाव का ऑप्शन है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसको मंजूरी दी है, बहुत ही अच्छा है युवाओं के लिए। इससे हमारे जो शिक्षा के क्षेत्र में जो बार बार आचार संहिता लगी थी, अब वो 5 साल में सिर्फ एक बार ही लगेगी। इससे हमारे स्थानांतरण में और शिक्षा के जो फॉर्म होते हैं उसके अंदर जो रुकावट आती है वो नहीं आएगी और इससे संसाधन राजकोष, जो भारत का राजकोष है, उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और खेलों के क्षेत्र में इस पैसे को उपयोग में लिया जाएगा। इससे हमारा देश का युवा आगे बढ़ सके। बार बार चुनाव होते हैं, आचार संहिता लगती है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को किस तरह की दिक्कतें पेश आती हैं? बार बार जब होता है तो प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि जब भी सारी चीज़ें रुक जाती है लगभग, जैसे कि ना स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, तो इस वजह से बच्चों की पढ़ाई भी रुक जाती है और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो उनको और टाइम के लिए तैयारी करनी पड़ती है, तो वो डिप्रेशन टाइप में चला जाता है। संसद में ये बिल पेश होगा, आपको क्या लगता है कि सभी पार्टियों का इसका साथ देना चाहिए? युवाओं की सोच तो यही निकल कर आई है कि इस बिल को पास हो जाना चाहिए। इस बिल को पास हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं इसके पक्ष में हूँ कि ये अच्छा है और इससे ना बहुत सारा काम है वो नहीं रुकेगा। इससे जो अपना राजकोष होता है जो भी नहीं रुकेगा, उसके पैसे बर्बाद नहीं होंगे, सारा काम अच्छे से होगा। इससे आचार संहिता से भी बार बार में ना वैकेंसियाँ रुक जाती, नवीन वैकेंसियाँ नहीं आ पाती है। इसके अलावा जो सरकारी जो कर्मचारी होते हैं सारे इसमें काम में लगे रहते हैं, तो वो सरकारी कर्मचारी का जो काम होता है वो रुक जाता है, इसमें होता है। आज का युवा चाहता है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर मोहर लगे संसद के सत्र में। इससे न सिर्फ देश में मतदान का जो पर्व है उसे महापर्व के रूप में मनाया जाएगा और मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा, बल्कि इससे देश का खर्चा भी बचेगा और देश की जीडीपी भी जो है आगे बढ़ेगी। रवि टेलर, डीडी न्यूज़, टॉक। मोदी सरकार रा तीसरा कार्यकाल रा 100 दिन पूरा होबा परा जयपुर रा सगला वर्ग अपनी प्रतिक्रिया दी है। लोगारो कहनो है कि मोदी सरकार लाडला कुछ वर्षा माए अभूतपूर्व काम करिया है, जिनसु विदेशा माए भारत री सांख बढ़ी है और भारत एक बड़ी शक्ति बनर उभर रही है। और वर्तमान में आप देखें एक पीएम जनमन का मिशन पूरे देश में चल रहा है, जो आदिवासी भाई बहनों को उससे लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे प्रदेश में जो 12 जिला है जहां पर जनजाति को लेकर उन्होंने बहुत विभिन्न प्रकार की घोषणाएं की है और उन व्यक्तियों को हर घर नल योजना तक उन्होंने लाभान्वित किया है। ऐसे कई प्रकार से उन्होंने योजनाएं हैं जो वास्तव में धरातल पर बहुत सराहनीय है और उनको इस कार्यकाल की शुभकामना देता हूँ। मोदी सरकार को बहुत बहुत बधाई हो जो अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हुए उनके। काफ़ी अच्छा प्रयास रहा है कि जैसे 2019 में पीएम आवास योजना के हिसाब से जो गाँव में डेवलपमेंट के हिसाब से मतलब लोगों को कच्चे घरों से पक्के मकानों में वितरित किया गया, बहुत अच्छी योजना है। अभी भी रिसेंटली मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। बाकी एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा सीन हो रहा है कि जैसे एजुकेशन फीस और जो अभी बेरोजगार के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रोजगार की, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। बाकी मोदी जी को भी अच्छा काम, विदेशी यात्रा जो राजस्थान में भी भजनलाल की सरकार जो जापान से इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है, बहुत बड़े काम है। भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मैं कहना चाहूँगी कि महिला सशक्तिकरण को लेकर कुछ प्रयास तो किए गए हैं। पिछले कुछ दिनों में कुछ घटनाएं हुई हैं जिनको लेकर प्रयास करना आवश्यक भी था। जैसे उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया है, लोकसभा में 33% आरक्षण दिया। मोदी सरकार के कार्यकाल के 100 दिन पूरे हुए हैं, वह वर्तमान में अभी तक बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण हुए हैं। अगर हम उनके कार्यकाल की बात करी जाए तो वह एक तरीके से तो बहुत सही भी हैं और ये भी कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि खामियां किसी भी कार्यकाल में होती नहीं है, होती है। एज ए बीइंग ए गर्ल अगर मैं कहूँ
तो सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि एक तो सुरक्षा काफ़ी सही है, लेकिन इतना अनकंफर्टेबल सीन होता नहीं है कि कुछ असुरक्षा जैसा महसूस हो। हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे जो सशक्त हुए हैं वह मुझे लगता है कि मोदी सरकार के आने के बाद से हुआ है। दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है, जो हमें धर्म के बारे में जागरूकता हुई है, जो मोदी जी के आने से पहले कम थी या फिर नहीं थी। कई सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, तो मुझे लगता है कि मोदी जी के आने के बाद बदलाव तो हुआ है। बूंदी में आज जिला कलेक्टर अक्षय गोदारारी अध्यक्षता में जिला स्तरीय जन सुनवाई राखी गई। जन सुनवाई के दौरान बिजली, पानी, सड़क और फसल खराबा समेत दूजा विषया माथे परिवाद मिलिया है। समस्या वाला निस्तारण खातर जिला कलेक्टर संबंधित महकमा रा अधिकारियों ने आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इन मौका पर जिला कलेक्टर कहा कि बारिश से क्षतिग्रस्त हुआ मकान और फसल खराबारी भरपाई खातर जल्द ही मुआवजो रिलीज करियो जावेड़ो। अभी तक सरकार अलाउ करेगी तब उनकी नए आवेदन मैं एक बार देख लेता हूँ क्या कर सकते हैं। आज जिला स्तरीय जन सुनवाई में 55 परिवाद प्राप्त हुए हैं। मेनली काफ़ी परिवाद जब अतिक्रमण रास्ते के संबंधित या पेंशन या संबंधित थे, तो कुछ परिवाद जो तुरंत निस्तारित हो सकते हैं उनका तुरंत निस्तारण किया गया है और कुछ के लिए डायरेक्शंस दिए गए और उन पर जल्दी कार्रवाई कर दी जाएगी। चूरू में हुई लगातार बारिश के कारण अस्पताल में रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिनरे चालता जिलारा राजकीय अस्पताल ने अलर्ट मोड माथे राख्यो गयो है। अस्पताल में सितंबर माह में अबार ताई 41,000 सु 32 रोगियों ने आउटडोर में चिकित्सक सु सलाह ली है। अस्पताल रा अधीक्षक डॉक्टर हनुमान जयपाल बताया कि रोगियों की बढ़ती संख्या ने देखता थका विशेष व्यवस्था वा करी गई है। उन्होंने बताया कि मौसमी बीमारियों के मद्देनजर 20 डॉक्टरों की एक विशेष टीम बनाई गई है। इनके साथ ही विशेष वार्ड भी तैयार किया गया है। अभी इन दिनों बारिश से अत्यधिक होने से पेशेंटों का भी भार बढ़ा है और जो इसमें मौसमी वजह से डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया, इस तरह के पेशेंट भी बढ़ रहे हैं और कुछ कई पेशेंट इस वजह से खांसी जुकाम के पेशेंट भी आ रहे हैं। तो इनको देखते हुए हमने भी डॉक्टरों की टीम तैयार कर दी है। अलग से वार्ड भी हमने बना दिया है, वार्ड में बेड भी आरक्षित कर दिए हैं और साथ में जो लेट टेस्ट के लिए भी अपने प्रभारी को हमने प्रबंध कर दिया है और जो पेशेंट जैसे भी आते हैं इनके लिए भी अपने पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ, फूड भी हमने रख ली है। तो अभी जैसे डेंगू पेशेंट भी बाहर हैं, जांचों में जैसे देखने पाया जाता है। कुछ पेशेंट ऐसे जिनकी प्लेटलेट कम होती है, जिनको मतलब देखने का उस तरह डेंगू हो, तो इस तरह के पेशेंट भी आ रहे हैं। तो इसके लिए हमने पर्याप्त मात्रा में प्रॉपर डॉक्टरों को हमने सबको तैनात कर दिया है। बहुत अधिक संख्या में इस तरह के केस नहीं आ रहे हैं, जैसे डेंगू के पेशेंट हैं, ये अभी कोई ज़्यादा नहीं है। पर्याप्त जो है व्यवस्थाएँ हॉस्पिटल स्टाफ ने कर रखी हैं, वार्ड भी बिल्कुल तैयार हैं, स्टाफ भी बिल्कुल तैयार है, पर्याप्त दवाइयाँ समुचित मात्रा में उपलब्ध हैं और जहाँ तक है अगर और आगे बढ़ता तो हम और इसके लिए और विस्तार करें। केंद्रीय प्रयोगशाला में लेटेस्ट मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है जांचों के लिए। तो आप देखा होगा कि अधिकतर जितनी भी मशीनें हैं सारी फुली ऑटोमेटिक और हाईली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाली मशीनें हैं, जिससे कि मरीजों को जल्दी से जल्दी और बेहतरीन जाँचें की जा पाए निःशुल्क। और साथ में ही इंसुलिन और विशेष जांच योजना के अंतर्गत सारी हार्मोन जांचें करने की जो है मशीन यहाँ पर उपलब्ध है, जिसमें कि रतनगढ़, सुजानगढ़ और लाडनू जैसे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की भी जांचें यहाँ पर की जा रही हैं। जितने भी लगभग संदिग्ध जो मरीज आ रहे हैं, लगभग डेली 200 से 300 जांचें यहाँ पे पर डे हो रही है, जिसमें मौसमी बीमारियों के लगभग 50 से 100 के बीच में जो है मरीज आ रहे हैं, जिनमें सर्दी लग के बुखार आना, बदन दर्द, उल्टी, जी घबराना, इस तरह के लक्षण हैं। तो उनकी मौसमी बीमारियों संबंधित जांच की जा रही है, जिसमें CBC, मलेरिया, डेंगू और टाइफाइड भी डाल की जा रही है। अनूपगढ़ जिला में भारत पाक सीमा रे कणे सीमा सुरक्षा बल सर्च अभियान चलार अवैध हथियार बरामद करिया है। ये हथियार एक खेत परा बना खंडर में छुपा रखा गया है। सर्च अभियान के दौरान 2 अवैध पिस्टल भी बरामद करी गई। इन संबंध में BSF काणीसू घड़साना थाना में मुकदमो दर्ज करवायो गयो है। ये BSF ने अपने चित्रकूट के कंपनी कमांडर ने थाने पे आए थे आज शाम को और उसने सूचना दी थी कि 2 अवैध हथियार है। कोई अब नरेंद्र पाल कंबोज है, उसने कोई किसी रावता राम की कोई ज़मीन है इससे पे वो ले रखी काश्त के लिए,
तो उसके खेत में कोई खंडरनुमा के उसमें कोई मकान बना हुआ है, उसमें 2 देसी कट्टे 12 बोर के उसमें मिले हैं, है ना, जो पुराने हैं, जंग लगे हुए हैं। एक तो पूरी टूटी फूटी हालत में और दूसरा जो एकदम ख़राब सी हालत में है। तो थाने में लाकर उसने पेश किए, जिस पर आज उसको अपने जब्त करके और मुकदमा दर्ज किया है। मौके पर बड़ूरा मेरे से जांच के लिए गया और जो भी आगे उसमें कार्रवाई है वो की जाएगी। सिरोही जिल्लारा माउंट आबू में इन दिना मौसम सुहावनो बन्यो है। इन दिना बड़ी संख्या में पर्यटक माउंट आबू री सौंदर्यता ने निहारबा खातर पुग रिया है। पर्यटकारो कहनो है कि वना ने अठे प्रकृति रा खूबसूरत नजारा देखवा ने मिल रिया है। वटे पर्यटकारी आवक सु स्थानीय व्यापारियों ने भी फायदो हो रियो है। पण माउंट सारखा मौसम कुठे बघितला नाहीये। इकडचा व्ह्यू खूप जास्त छान आहे। बघू शकता नक्की लेक खूप ओव्हरफ्लो झालेला आहे। નક્કી લેકના જોડે ઊભી છું। વરસાદ બહુ છે અને ઠંડી પણ બહુ છે અને અહીંયા ફરવા જેવી બહુ સારી એવી જગ્યા છે આબુ રોડમાં और માઉન્ટમાં બી બહુ સારું એવું છે। હું ગુજરાત ઈડરથી આવી છું। હું બધી જગ્યાએ ફરી બટ આનું માઉન્ટ આબુનું મौसम બહુ સારું છે અને બહુ ઠંડી છે અને આ નક્કી લેક ઓવરફ્લો થાય છે। जो सुना था माउंट आबू के बारे में उससे कई ज़्यादा बढ़कर है। इस समय प्रकृति का खूबसूरत यहाँ नज़ारा है। आप देख सकते हैं आसपास बिल्कुल बादल जो है बारिश के रूप में बरस रहे हैं। प्रदेश में आज सु एक बार फेर बारिश रो दौर शुरू हो गयो है। इनरे चालता राजधानी जयपुर समेत कई जिला में हल्का सु मध्यम दर्जारी बारिश हो रही है। जयपुर में आज तड़के हुई बारिश रे पछे मौसम रो मिजाज बदल गयो है। मौसम विभाग आज जयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर में हल्की सु मध्यम दर्जारी बारिश होबारी संभावना जताई है। खास खबरा एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 सितंबर ताई रेवेला अमेरिका रा दौरा परा। UNGA शिखर सम्मेलन ने करेला संबोधित। नेतावां और उद्योग जगत रा प्रमुखा सु करेला वार्ता। मोदी सरकार रा तीसरा कार्यकाल रा 100 दिन पूरा होबा परा। सहकारिता मंत्रालय रो राष्ट्रीय सम्मेलन हुयो आयोजित। सहकारिता मंत्री अमित शाह कहा श्वेत क्रांति 2.0 महिला सशक्तिकरण रो करेली काम। दौसारा बांदीकुई में बोरवेल में गिरी बच्ची ने काढ़्यो गयो सकुशल बारे। NDRF और SDRF री टीम में करीब 18 घंटा री मशक्कत रे पाछे पाई सफलता। प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना रो बढ़ायो जावेलो दायरो। योजना रे तहत अब निजी अस्पताल रो नेटवर्क भी गांव ताई हो सकेलो उपलब्ध। और प्रदेश में आज सु एक बार फेरू बारिश रो दौर हुयो शुरू। मौसम विभाग आज जयपुर, भरतपुर, अजमेर समेत कई जिला में बारिश होबारी जताई संभावना। आ बुलेटिन में अत्रोई थे। देखते रहियो DD राजस्थान। नमस्कार।